ہمارے جوان تین چیزوں میں پیچھے، تین چیزوں میں آگے، جن میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے، جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے۔ ہمارا جوان نوکری کرنے میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ ہمارا جوان کاروبار میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے، پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور پوری دنیا میں 232 ملک ہیں۔ سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ تو لکھا ہندوستان۔ اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون؟ تو لکھا مسلمان۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارا جوان آگے ہے تو کس میں ہے؟ موبائل میں۔ ہمارا جوان آگے ہے تو کس میں؟ زنا کرنے میں، منہ کالا کرنے میں۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ تو دارو پینے میں۔ یہ جو جنوری کا جشن آ رہا ہے، دسمبر جیسے ہی ختم ہوگا 2025 ختم ہوگا اور 2026 شروع ہوگا، اس نئے سال کے جشن میں بسم اللہ خراب کرنے میں ہمارا جوان عیسائیوں کے ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے۔ عیسائیوں کا جشن ہے جنوری کا جشن، اور ہمارا جوان دارو پی کر کے چکھنا لینے میں ایسا ریکارڈ توڑتا ہے کہ عیسائیوں کو پیچھے کر دیتا۔ محرم کا ماتم شیعوں کا ماتم ہے، لیکن ہمارا جوان سنی شیعہ کے ماتم میں اتنا دارو پیتا ہے کہ شیعوں کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ ایک جوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کے بولا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ شوق سے پڑھو۔ کہ یا رسول اللہ مگر میری ایک شرط ہے، جب تک آپ زنا کی اجازت نہیں دو گے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ خفا ہوئے، ایک کیسا جوان ہے، رانچی سے آیا ہے۔ جیسے ابھی مبشر رشیدی کہہ رہے تھے کہ میں رانچی سے آ رہا ہوں۔ معاف کیجئے گا، رانچی وہی لوگ جاتے ہیں جس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، دھیان سے رکھیے گا۔ تو کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے رسول حکیم تھے، کہا کہ او جوان تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کا لائسنس دیتا ہوں۔ صحابہ چکرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب صحابہ وہ نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اس خوشی میں کہ میں مسلمان بھی ہو گیا، مجھے زنا کا لائسنس بھی ملے گا، ایک پنت دو کاج، ایک تیر سے دو شکار، بڑا خوش ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، او جوان میری بھی شرط سن لو، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ کہا او جوان غور کرو، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے اس کا قیمہ بنا دو گے۔ لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، جس عورت کے ساتھ تم منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دارو سے بچیں گے، پورے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے، زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کہ برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں۔ بڑی تیزی کے ساتھ اتنی محبت میں ڈوب کر کے آپ نے جلسہ سنا کہ میرے حصے کا جلسہ نکل گیا۔ مردوں کے حوالے سے صرف ایک پیغام باقی رہا، عورتوں کے حوالے سے 2 پیغام، 3 پیغام میں 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔
सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके हमको ऐसे देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं और काली टोपी पहन करके बैठा हूं। आप लोग नजर लगाते रहिए, हम नजर उतारते रहते हैं। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? मियां बीवी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं आपको पहुंचा ही दूंगा वहां पे जहां आपको पहुंचना है। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ध्यान से। एक जवान दूसरे जवान से कहता है खफा होकर के, ऐसा तमाचा मारूंगा मदीना पहुंचा दूंगा। ये दूसरा जवान उससे ज्यादा समझदार था, बोला भाई साहब एक तमाचा मत मारो, डबल डबल मारो। डबल मारोगे सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा और फ्री में हज हो जाएगा, वहां से वापस आ जाऊंगा। 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। कितनी बड़ी हुकूमत थी? 57 मुल्क एक हुकूमत में। कितनी बड़ी हुकूमत होगी? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमत मुसलमान के पास थी। गई कैसे? नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, हाथ जोड़ करके कहता हूं, मसलक के झगड़े से निकल जाइए, घर के झगड़े से निकल जाइए, अल्लाह तरक्की के आसमान में उसी दिन पहुंचा देगा। एक कुर्सी पर बैठता है बादशाह, वो कौन था? सुन्नी था। दूसरी कुर्सी पर कौन बैठता है? वजीर। वजीर क्या था? शिया। एक हुकूमत 57 मुल्क के बराबर, लेकिन कुर्सी पर जो बैठा वो बादशाह सुन्नी था, मगर मुसलमान था, सुन्नी था। और वज़ीर अरब की कुर्सी पर जो वजीर बैठा वो शिया था। शिया और सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। एक नमूना और याद रखिए, जिस हिंदुस्तान में हम लोग सांस ले रहे हैं कितना बड़ा था, आपको अंदाजा है? काबुल तक हिंदुस्तान था, काबुल तक। काबुल कहां है? अफगानिस्तान में। यहां तक हिंदुस्तान था। और दूसरी तरफ जाइए, कहां तक था? बर्मा तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान छोटा कैसे हुआ? मुसलमानों के हाथ में था। मुसलमान के हाथ से निकला कैसे? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो लिखने वाले ने लिखा कि 1707 में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। बेटों ने कुर्सी के मामले में झगड़ा शुरू किया। झगड़ा इतना तूल हुआ, औरंगजेब बादशाह को 3 बेटे, 3 बेटों का झगड़ा एक कुर्सी के लिए। वो झगड़ा हल नहीं हुआ जब तक कि हिंदुस्तान छोटा हो गया। मुसलमान के हाथ से जो निकला तो अभी तक लौट करके नहीं आया। आपके अलविदा जुमा में मस्जिद में ऐलान हुआ है। जानते क्या ऐलान हुआ है? कि लोगों, ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी। कलकत्ता में भी वही ऐलान, पटना में वही ऐलान, रांची में वही ऐलान। जैसे ही कलकत्ता में इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए कि ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी, एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हो गया कि इमाम साहब ऐलान वापस लीजिए, मस्जिद में ईद की नमाज पढ़िएगा तो मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा, अरे भाई तुमको क्या परेशानी है? ईदगाह में पढ़ने में क्या परेशानी है? कहा परेशानी, मेरे भाई का केस चल रहा है 10 साल से, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उसके साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आ गया इसके घर का झगड़ा है, 1 मिनट में हल कर देते हैं। इमाम साहब ने कहा, अरे तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे घर का मैं हल कर देता हूं। तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा। वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाओगे। मसला हल हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तो खफा होकर के कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तो ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तो ही है आजानों में। तेरे ही दम से दीन और धर्म की दुनिया
दुनिया है आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजी हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। मैं इससे पहले भी आया था डाइटन में, लेकिन जितना मजा मुझे आज के जलसे में आ रहा है इससे पहले नहीं आया। इसका मतलब है कि आप मोहब्बत और खुलूस के साथ बैठे, और ये जलसा आज तक के जलसे में तारीखी जलसा बन रहा है। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस का नतीजा है। मैं दुआ करता हूँ आपके घर में अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको माला माल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आज से 40 साल 50 साल पहले दो चीजों की घर के अंदर हिफाजत होती थी। एक औरत की हिफाजत होती थी। औरत के लिए मर्द बाजार जाता था, उसकी जरूरत का सामान मर्द बाजार से खरीद करके औरत को ला करके देता था। औरत की हिफाजत घर में होती थी, और दौलत आदमी घर के अंदर रखता था, संदूक में छुपा करके ताला लगा करके चौकीदार रख करके दौलत की हिफाजत घर में करता था। 40 साल 50 साल के बाद रिवायत बदल गई। जो घर की दौलत थी वो घर से निकली बैंक में चली गई, जो घर की औरत थी घर से निकली बाजार गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। गुनहगार औरत कम है, मर्द गुनहगार है। जिस औरत को देखिए आप नकाब है, जिस औरत को आप देखिए बुर्का है, जानते हैं इसको क्या कहते हैं? सत्तारुल उयूब। जब तक ये औरत जिंदा रहेगी नकाब के साथ, जब तक ये औरत जिंदा रहेगी बुर्के के साथ, अल्लाह इसके एक एक ऐब को छुपाएगा। अगर इसी हालत में मर गई तो अल्लाह कयामत में इसके एक एक गुनाह को माफ फरमा देगा। डीजे का डांस हो रहा था, एक आदमी पैसा उछाल करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी कहता, सॉरी मैडम बोल हो गई। तो वो आदमी कहता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। खुली फिरती हैं जो आजाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानी औरतें पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार। अपनी औरत को अपने सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपने उठाया और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। आपकी हुकूमत चली जाएगी और बड़ी जल्दी जाएगी, ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा। अगर तवज्जो नहीं करेंगे 2 मिनट का नमूना निकल जाएगा, मग्ज निकल जाएगा, छिलका हाथ आएगा। पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, उसका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने जलसे के लोगों से कहा, जानते हो दुनिया की जन्नत कहाँ है? बताओ, कौन बता सकता है? डाइटन के लोग हैं, इधर औरत है इधर मर्द है, बताओ। जवान है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बताओ। एक लाइन का जवाब है, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब है। कौन खड़ा होता है देने के लिए कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो हजरत ने बताया, गौर से सुनो, याद करके ले जाओ, ध्यान से रखना। दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? उस घर में है जिसमें मियाँ बीवी एक हो, नेक हो। जैसा सुकून जन्नत में अल्लाह देगा,
वैसा सुकून दुनिया में अल्लाह अता फरमाता है। एक आदमी जब अल्लाह की अदालत में गया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, देखो इसका नाम अमाल चेक करो, नेकी है कि नहीं, जन्नत में जा सकता है कि नहीं। फरिश्तों ने इधर से उल्टा करके देखा, उधर से उल्टा करके देखा, इधर भी गुनाह उधर भी गुनाह, गुनाह से नामे अमाल भरा हुआ, एक नेकी भी नहीं। अब फरिश्तों ने हाथ उठा दिया कि मालिक इसको कहां भेजा जाए, जन्नत में भेजा जाए या दोज़ख में भेजा जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि इसको जन्नत में भेजो। फरिश्ते के कान खड़े हो गए, एक नेकी नहीं फिर भी जन्नत में जा रहा है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बीवी पर मेहरबान था, बच्चों पर मेहरबान था, बीवी पर मेहरबान था, बच्चों पर मेहरबान था। मेहरबान होना मेरी सिफत है, मैं नहीं चाहता हूं अपनी सिफत के मालिक आदमी को जन्नत की बजाय दोज़ख में डाल दूं। इमाम राजी ने माइक पकड़ करके लोगों को इस मसला बताया कि देखो ये 10 रुपया है, इसको अगर किसी गरीब को दोगे तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा, लेकिन 10 लाख रुपया शादी में बहा दो, शैतान नहीं रोकेगा, पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा, काम ये किया है। 10 रुपया निकाल करके किसी गरीब को दो, 70 शैतान रोकेगा। डाइटन का एक जवान खड़ा था, बैठा हुआ था, बोला हजरत आज मैं शैतान को पछाड़ करके रहूंगा, देखता हूं शैतान मेरा रास्ता कैसे रोकता है। 10,000 रुपया मैं मस्जिद में दे करके आ रहा हूं। वो यहां से उठ करके गया, संदूक से जब पैसा निकाल रहा था तो बीवी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा मसला मालूम हुआ, मौलवी ने बताया। तो बीवी ने कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहां है वही रहने दो। अब वो चला गया, वहां से वापिस आया तो मुंह लटका करके जलसा में बैठा हुआ है। तो हजरत ने कहा रे सीना तान करके गए थे कि 10,000 खैरात करूंगा, शैतान को पछाड़ करके आऊंगा। अरे वहां से वापिस आए तो सरगाड़ करके बैठ गए, मुंह लटका करके बैठ गए। बात क्या हुई? उसने कहा हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका कौन किसका कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। पैगाम खत्म हो गया। जब मैं सामाईन से खुश होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपके घर जाने से पहले आपको जन्नत का टिकट मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको जन्नत का टिकट मिले। कैसे मिलेगा? माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करेंगे, जन्नत का टिकट दुनिया ही में मिल जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर चचा मैंने आपको देख लिया, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप हाथ उठा करके भी मुस्कुरा रहे जैसे मैं मुस्कुरा रहा। दस्तरखान बिछा हुआ था, बस 2 मिनट में नमूना निकल रहा है। देखिए पसीना मेरा छूट रहा है, पानी मुबश्शिर पी रहा है, क्योंकि आपको किस किस घाट का इसने पानी पिला दिया है। ध्यान से रखिएगा। दस्तरखान लगा हुआ है, बेटा खाना खाने लगा तो तरकारी खाने में, सालन खाने में मजा नहीं आया, तो माँ से कहता है अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुझको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा बेटा मैंने नहीं पकाया, तेरी बीवी ने पकाया। कहा सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब नहीं है, यही तो सोच रहा है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा सालन खा रहा हूं। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितनी ही शोहरत वाला हो जाए, 3 आदमी के सामने छोटा ही रहेगा। शागिर्द मुहद्दिस हो गया, लेकिन जब मकतब के उस्ताद के सामने होगा तो खड़ा रहना पड़ेगा। जो रुतबा उस्ताद का है वो मुहद्दिस जैसे शागिर्द का भी नहीं है। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं, हाकिम से बड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है। हाकिम के सामने जब प्रधानमंत्री आता है तो खड़ा होकर के सवाल का जवाब देता है, बैठने की भी इजाजत नहीं। जो रुतबा हाकिम का है वो प्रधानमंत्री का भी नहीं है। तीसरा रुतबा किसका है? माँ बाप का। माँ बाप कितने ही बड़े जाहिल हों,
कितने ही बड़े गुनहगार हो, बेटा कितना ही बड़ा फरमाबरदार हो, रुपया पैसा वाला हो, पढ़ा लिखा हो, जब माँ बाप के सामने आता है तो उसका मर्तबा छोटा ही होता है, बड़ा नहीं हो सकता। चाहे आपका डाइटन हो, चाहे लोटिया बारी हो, हर जगह का दस्तूर है। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो 3 दिन में वापस आ जाती है, कहीं पर 3 दिन में, कहीं पर 1 दिन में। नई लड़की मैके से जब ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। जब वो वहां से वापस आती है तो क्या होता है, ये मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, पूछती है बेटी ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? दूसरी औरत पूछती है कि शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत पूछती है कि ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आती, बेटी वो सब सवाल फालतू है, मेरे असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को ससुर भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो वो होती है जो अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। जब पहली मर्तबा मैके से ससुराल गई थी तो कौन तुमको लेने के लिए आया था? तो उसने कहा था कि सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया, पसंद करने के बाद बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है।